Wheatstone Bridge is also called Post Office Bridge. क्यों? Because earlier there was no internet, right? And people used to use telegrams, and that used to be, cable. There were two cables underground, or so. What happens sometimes, the cables are laid like this underground, there will be short circuit. If the two wires join together, it's called short circuiting. तो जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फिर सिग्नल कैन नॉट बी सेंट. तो अब सारे केबल्स अंडरग्राउंड हैं, कहाँ पे वो लाइन शॉर्ट हुई वो कैसे पता करोगे? सो दे यूज टू यूज दिस व्हीटस्टोन ब्रिज और पोस्ट ऑफिस ब्रिज. फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ, से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, बिकॉज ये एक सीरीज में कनेक्ट हो गया. अभी शॉर्ट सर्किट का मतलब ये हो गया, इट हैज बिन डिस्कनेक्टेड. इट इज नाउ लाइक दिस. So you find the resistance of this wire. Once you know the resistance of this wire, then you know what is the length of resistance per unit length, because resistance depends upon length. R is equal to rho L by A. So using this R, you know the material, you know the cross section, you can find the length of this wire. ये लेंथ तुम्हें पता लग गई. इस लेंथ को 2 से डिवाइड कर दिया, आधा लेंथ पता लग जाएगा. देन उसको मेजर करके वहां पे तुम डिक करके पता कर लोगे यहाँ पे वायर शॉर्ट हुआ है. अदरवाइज यू हैव टू डग अप ऑल द cables everywhere. So this is how it was used. तो इसका नाम पहले पोस्ट ऑफिस ब्रिज भी हुआ करता इसी वजह से. एंड यू हैव एक्सपेरिमेंट ऑन दिस एज वेल. हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, अभी कर लिया नहीं किया? अभी प्रैक्टिकल ऑन पोस्ट ऑफिस ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं किया अभी. एक मीटर ब्रिज का भी होगा. मीटर ब्रिज ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल. कर लिया ना? हाँ, तो इस बेस्ड ऑन सेम प्रिंसिपल. तो पोस्ट ऑफिस ब्रिज या मीटर, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, देयर 5 रेसिस्टर्स, and the fifth one is basically a galvanometer which has a resistance G. इसमें एक अननोन रेसिस्टेंस होता है, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, and two are given to us. We know the two values of two resistors, P Q R S, P by Q, R by S. So you pass electric current through this system of 5 resistors with the help of a battery, and then you keep adjusting the value of the variable resistor. तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर पे, वेरिएबल रेसिस्टर पे क्या होगा, द गैल्वानोमीटर विल शो zero current. The current will be zero. And when the current is zero, that means if this is A, this is B, this is C, this is D, B and D are the same potential, because the current flow only and only if there is potential difference. So when the current is zero, that would mean that VB and VD are the same potential. So we can neglect this. And in that situation, you have a balanced bridge, which is P by Q is equal to R by S. तो ये भी derive करेंगे. This will be for 3 marks. तो Wheatstone bridge is for 3 marks. इसकी कहानी लिख लो, वैसे मैंने नोट्स में दिया हुआ है वैसे सारा, बट स्टिल विल derive it now. A Wheatstone bridge, लिखो. A Wheatstone bridge consists of a Wheatstone bridge consists of 4 resistors, 4 resistors, one out of which one is unknown, out of which one is unknown,
ब्रैकेट में लिख सकते टू बी फाउंड, टू बी फाउंड a variable resistor, a variable resistor, ब्रैकेट में लिख लो रेसिस्टेंस बॉक्स, नॉट रियोस्टेट, रेसिस्टेंस बॉक्स, a variable resistor, ब्रैकेट में रेसिस्टेंस बॉक्स, along with, along with two given resistors, along with two given resistors. These resistors are connected, these resistors are connected with a battery, with a battery and a galvanometer. These resistors are connected with a battery and a galvanometer and a galvanometer as shown in figure. तो ये सर्किट बना लेते हैं। आज जे पेपर 2 का रिजल्ट आ गया है। वी गॉट ए ऑल इंडिया रैंक 7 and 12, द बेस्ट रैंक सो फार अभी तक जितना रिजल्ट आया। जे पेपर 2 आर्किटेक्चर। There's a battery here. You can put a key also if you want. This resistor is P. This is Q. बड़ा डायग्राम बनाना, ठीक है? Always draw big diagrams. बड़े डायग्राम बनाने का फायदा होता है कि you'll get good marks. देखा ना तुमने? वो पूरे पूरे मार्क्स आए तुम्हारे। हाँ, कि वो तो थिन लेंस को तुमने फैट लेंस बना दिया, उसको थोड़ा थिन बनाना नेक्स्ट टाइम, टीचर ने बोला। अच्छा, इसने तो अच्छा बनाया होगा, आर्किटेक्चर स्टूडेंट है ये। एंड दिस इज अ गैल्वानोमीटर हियर, सो दिस इज द सर्किट। मतलब आधा पेज तुम्हारा डायग्राम से हो जाना चाहिए। 1/4 में फॉर्मूले लिख दो, 1/4 में डेफिनेशन ऑफ वर्किंग, बस। फिजिक्स में ये होता है। नाउ बेसिकली इसमें जो मैंने बताया ना वेरिएबल रेसिस्टर, वो रेसिस्टेंस बॉक्स होता है। तुमने यूज भी किया होगा लैब में। रेसिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, इट्स बॉक्स काइंड ऑफ थिंग, और इसमें कीज होती हैं यहाँ पे, और इन कीज के ऊपर लिखा होता है 2 ओम, 10 ओम, इनफाइनाइट ओम, 100 ओम। जो कि तुम बाहर निकालते हो दैट रेसिस्टेंस कम, हाँ, इनफाइनाइट भी होता है। सो वो की वो रेसिस्टेंस सीरीज में आ जाता है। तो होता क्यों ऐसा, वो समझाता हूँ मैं तुम्हें। रेसिस्टेंस बॉक्स में ये सारे कॉपर के बने होते हैं। कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। की भी कॉपर की बनी हुई है। सो दिस इज द की, ये इसका नॉब है। सपोज पे लिखा हुआ है 100 ओम, राइट? ये भी कॉपर का बना हुआ है। तो एज सच दिस अ रेसिस्टेंस क्वाइल जो यहाँ कनेक्टेड होती है। एक 100 ओम की क्वाइल यहाँ कनेक्ट होगी। तो एज यू नो द करंट टेक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, है ना? करंट टेक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। जैसे तुम्हें सपोज किसी ने क्वेश्चन पेपर दे दिया बोर्ड का, एडवांस में ये पढ़ लो, फुल मार्क्स आएंगे, तो तुम फिर पढ़ाई थोड़ी करोगे, वही पेपर कर लोगे। तो ह्यूमन नेचर। तो सिमिलरली करंट टेक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। तो अगर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो एक तो उसको 100 ओम से जाना पड़ेगा, या उसको सीधा सीधा 0 ओम से जाना पड़ेगा। तो करंट क्या प्रेफर करेगा? करंट विल ट्राई टू पास थ्रू 0 ओम। अब व्हेन यू टेक आउट द की, जब तुमने की को बाहर निकाल दिया, फिर क्या होगा? मतलब तुमने 100 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया। अब नाउ द करंट हैज टू पास थ्रू दिस 100 ओम। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये होता है रेजिस्टेंस बॉक्स में। इनफाइनाइट में क्या होगा? इनफाइनाइट में कॉइल हटा देंगे। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में कॉइल हटा दिया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में कॉइल हटा दिया, इलेक्ट्रॉन थोड़ी जंप थोड़ी कर जाएगा,
कूद के। बस, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? नो करंट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? जीरो करंट। हाँ, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ये तो हुआ ना, जीरो करंट, ओपन सर्किट हो गया। ये होता है। So this is how a resistance box works. So resistance box is a variable resistance, apparatus. इसका एडवांटेज ये कि हमें पता होता है कितना रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगाया है। हालांकि इसके अलावा एक और होता है, रियोस्टेट। उसका सिंबल ये है। रियोस्टेट भी तुम लोग यूज करोगे टू कंट्रोल द करंट इन अ सर्किट। एक सिलेंडर होता है, नॉन मेटालिक। और उस पे ना इंसुलेटेड वायर का कॉइल होता है इस तरह से। एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। यहाँ पे एक स्लाइडर होता है। तो जब तुम स्लाइडर को आगे पीछे मूव करते हो तो कॉइल्स होती हैं, वो सीरीज में जाती हैं कनेक्ट। तो जितनी ज्यादा कॉइल्स कनेक्ट होंगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सर्किट में करंट कम हो जाएगा। बट रियोस्टेट में हमें ये नहीं पता लग पाता कि कितना रेजिस्टेंस अननोन है, हमने कितना कनेक्ट किया है। बट वी कैन कंट्रोल द करंट। अगर सपोज किसी सर्किट में करंट बहुत ज्यादा है तो सारे डिवाइस फेल हो जाएंगे ना, तुम्हारे एमीटर वोल्टमीटर वगैरह। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वी यूज रियोस्टेट। बट रेजिस्टेंस बॉक्स में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस में पता लग जाता है। So this is how. So one is resistance box, one is unknown resistance, two are known to us. अब हम क्या करते हैं? Let's, when you put the key, close the circuit. क्लोज का सर्किट का मतलब ये नहीं सर्किट बंद करके घर पे चले गए। क्लोज का मतलब यहाँ उल्टा होता है। करंट इज फ्लोइंग। तो क्लोज सर्किट का मतलब है करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो बैटरी से करंट शुरू हो रहा है यहाँ से। करंट स्टार्ट फ्रॉम हियर, आई। अब करंट का डिविजन कर दो। जंक्शन आ गए, जंक्शन रूल लगा दो। सपोज यहाँ से करंट जा रहा है I1। यहाँ कितना करंट होगा? I - I1। गैल्वानोमीटर में करंट IG ले लो। एंड दिस इज I1 - IG। तो ये भी I1 - IG हो गया, दिस इज IG। तो ये बताना कितना करंट होगा? ये ऐड होगा और ये ऐड होगा। I - I1 प्लस IG। इसको ऐड करके बताओ कितना आया वापस। सर्किट इज कंप्लीटेड। बना लो। तो वी हैव बेसिकली डिवाइडेड द करंट, डिस्ट्रीब्यूटेड द करंट। अनन्या, छुट्टी कब से हो रही है? सर अब बस नेक्स्ट वीक एक्स्ट्रा क्लासेस है, फिर फर्स्ट से। ओके। तो मैं सोच रहा हूँ कि जून में वी कैन हैव लॉन्गर क्लास, 2.5 hours। सर ऑनलाइन। और क्या? सर बट मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाला कर लो। अरे मेरी क्लास होती है उस दिन, नहीं कर सकता मैं। सर 6:30 से मेरी केमिस्ट्री की ट्यूशन होती है। अरे पहले करूंगा ना, पहले। स्कूल थोड़ी है, स्कूल तो बंद हो जाएगा। हाँ ठीक एग्जैक्ट है, तो शुरू कर देता हूँ। 6:30 से। अरे मैं बिफोर द क्लास, स्कूल थोड़ी जाना है तुम्हें झाड़ू लगवाने। 3 to 4 बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। और ऐसा करेंगे, दूसरा टॉपिक ले लेंगे, वेव ऑप्टिक्स कर लेंगे, ताकि द आइडिया इज थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, यूल बी कंफर्टेबल। तुम्हारा एंट्रेंस भी तो आ रहा है। आज JEE पेपर 2 का रिजल्ट आ गया है। द बेस्ट रैंक इज, यस, आरव की 2 ईयर स्टूडेंट की रैंक 7 आई है। एक रक्षा है बैंगलोर की, उसकी 12th रैंक आई है। 58, 38, बहुत सारे बच्चों की अच्छी अच्छी रैंक्स आ गई हैं। सर लास्ट ईयर सिंगल डिजिट नहीं था, इस बार फिर सिंगल डिजिट आ गया। JEE पेपर 2 फॉर आर्किटेक्चर। हाँ, क्या? लास्ट ईयर सिंगल डिजिट नहीं था, इस बार फिर सिंगल डिजिट आ गया। हाँ, सिंगल डिजिट आ गया ना इस बार। अब तुम लोगों को और भी अच्छा करना है। 100% लानी है। वो तभी हो पाएगा कि हमारा पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, आई कैन कंडक्ट मोर टेस्ट। तो ये जून हमारे पास एक ऐसा महीना है जहाँ पे एक एक्स्ट्रा चैप्टर मैं तुम्हें करा दूंगा। चाहे तुम 45 मिनट्स एक्स्ट्रा कर लो, लेकिन वो कर लोगे तो हो जाएगा। एक महीने वो वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। वो आएगा भी से तुम्हारे इसमें। ठीक है। सर फिर कितने चैप्टर्स खत्म करवा दोगे? जित ये जित फिर एक जितने हो महीने जाएंगे में। उतने कर लेंगे। आइडिया है कि ढंग से सेम हो जाए। सीक्वेंस में चलेगा, दो चैप्टर साथ में चलेंगे तो समझ नहीं 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 नहीं। आएगा। अरे उसमें समझ में आएगा, तुम बोर नहीं होगे। अगर एक ही चैप्टर में 2.5 घंटे पढ़ाऊंगा तुम बोर हो जाओगे। सर नहीं होगा ऐसा, बोर नहीं होंगे।
अरे होता है, मुझे मालूम है ना। चलो अब वापस आ जाओ। सर्किट बना लिया, इसको थोड़ा नेम कर लो। देखो ऐसा है ना, हमारी क्लास 4 बजे शुरू होती है, तो ऐसा कर लो 3 to 4 एक क्लास कर लेंगे, 5 मिनट का ब्रेक देंगे। 10 का ले लो यार, ऐश करो। ठीक है, फिर दूसरी क्लास कर लेंगे। नहीं नहीं, इसमें करा दूंगा ना, वरना तो बिल्कुल सेचुरेट हो जाएगा, फिर तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अभी सबके स्कूल बंद होने वाले हैं। इस महीने जितना एक्स्ट्रा कर लोगे उतना फायदा होगा, एंट्रेंस में तुम्हें टाइम बच जाएगा। नवंबर में तो पुश नहीं करना पड़ेगा मुझे एक्स्ट्रा, राइट। कम बैक हियर, इसको नेमिंग कर लेते हैं। तो इसमें तुम क्लास में कितने बजे आएगा? 3 बजे क्लास होगी तो छुट्टी के बाद, अभी छुट्टी होने वाली है ना स्कूल की, हो गई। टाइम पे आना। राइट। सो मैंने इसको नेम कर दिया है। लेट्स कंसिडर लूप ए बी डी ए। लूप ए बी डी ए ले लो, किरचॉफ्स रूल लगाओ भाई। ए टू बी टू डी टू ए। तुम्हें मालूम है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? माइनस आई आर होता है। ये वाला लूप ले लिया मैंने, गिलवानोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, ठीक है। तो माइनस I1 इंटू पी इज द रेसिस्टेंस हियर। बी से डी गए तो IG इंटू कैपिटल जी। गिलवानोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी है। फिर D to A जा रहे हो ऑपोजिट टू करंट, तो प्लस साइन हो जाएगा। दिस वुड बी Q इंटू करंट कितना है, I-I1 इक्वल्स टू 0। जरा देखो इसमें कोई डाउट है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वी टेक नेगेटिव। स्कूल में शायद तुम्हें उल्टा बताया होगा, बट दिस इज, यू कैन फॉलो दिस और दैट, बात वही, आंसर वही आएगा। नहीं, इसको ओपन मत करो, डोंट ओपन इट, बिकॉज वी आर डिराइविंग अ रिजल्ट। हम्म हम्म IG इंटू जी, एंड देन दिस। हाँ, दिस इज I-I1। दिस इज P द रेसिस्टेंस। PQR आर द रेसिस्टेंसेस, गैल्वानोमीटर का कैपिटल जी है, ठीक है। मनन समझ में आ रहा है? किरचॉफ तुमने मिस किया था शायद। यस सर। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस साइन लेते हैं, जैसे हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए से बी। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस आई इंटू आर ले लिया। अगेन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस आई जी इंटू जी ले लिया। एंड ऑपोजिट टू करंट जाएंगे तो प्लस लेंगे, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है किरचॉफ्स रूल का। नाउ टेक अनदर लूप, ये वाला लूप ले लो। लूप BCDB। देखो, लूप BCDB। बी B to C जा रहे हो, इन द डायरेक्शन करंट जा रहे हो ना, तो क्या होगा? माइनस रेसिस्टेंस R, करंट कितना है? I1 माइनस IG। फिर C to D जा रहे हो ऑपोजिट करंट, तो प्लस आएगा S इंटू I-I1 प्लस IG। एंड देन अगेन ऑपोजिट करंट, प्लस साइन हो जाएगा G इंटू IG इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जब हम जाएंगे तो माइनस लेंगे, ऑपोजिट करंट प्लस लेंगे। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग? नाउ टू बैलेंस द ब्रिज विल adjust the value of the variable resistor so that galvanometer will show zero deflection। लिखो आगे। in order to in order to balance in order to balance the Wheatstone bridge in order to balance the Wheatstone bridge, we adjust the value we adjust the value
of variable resistance by taking out suitable key from resistance box such that the galvanometer shows zero deflection. We take out a suitable key from the resistance box such that the galvanometer shows zero deflection. That is, Ig is equal to zero. अब so when Ig 0 हो गया तो इक्वेशन 1 2 क्या बन जाएंगी? Now Ig को 0 डाल दिया. So when you substitute Ig equal to 0, what is the first equation becomes? First equation will become minus I1P, ये 0 हो गया, Q I minus I1, इसको ओपन मत करना, minus I1P is equal to minus Q I minus I1, call it equation number 3. Don't open the brackets. ब्रैकेट ओपन मत करना. हाँ वो कट जाएगा, वैसे भी कट रहा है, मैंने एज इट इज लिख दिया. नाउ टेल मी, Ig को 0 डाल के इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? Equation 2 becomes, this is minus R1 I1, then this is plus S into I minus I1 plus 0 equal to 0. That is minus RI1 equal to minus S into I minus I1. See, the whole idea is to get equation of balance bridge, P by Q equal to by I by S. हमें वो चाहिए, हमें P by Q by R by S चाहिए. चाहो तो माइनस में माइनस काट दो, अदरवाइज जस्ट डिवाइड 3/4. You get your answer. लिखो आगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4. इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर दो, 3 divided by 4, and that's your result, will fetch you 3 marks. I1P by minus RI1 is equal to minus Q I minus I1 divided by minus S I minus I1. तो P by R is equal to Q by S, or P by Q is equal to R by S. So this is the condition for balance bridge. P by Q equal to R by S. So whenever in a combination of 5 resistors like this by this equal to this by this, you can always neglect ये वाला resistor because Ig 0 हो जाएगा. Now Ig 0 क्यों हो रहा है? Ig equals to 0 because potential at B and potential at D are equal. This is because of this. The current through galvanometer practical में they might ask in Viva also. जो भी तुम्हारे practicals है ना, उनके एक related theory पूरी पढ़ के जाना. Why the current in the galvanometer is 0? They might ask. The answer is because potential at B and the potential at D will become 0 when balance bridge condition is satisfied. दूसरा question they might ask you, if you interchange the position of, लिख लो इसको अलग से question के form में. If position of battery and galvanometer, if the position of battery and the galvanometer are interchanged
what will happen to what will happen to the valence bridge? What will happen to Wheatstone bridge? Will it be unbalanced? Will it remain balanced? That's the question. मतलब हमने क्या किया, सेल को यहां लगा दिया, गैल्वानोमीटर को यहां लगा दिया, उल्टा कर दिया। मैं इसी डायग्राम में, डायग्राम सब लोगों ने बना लिया ना, अब मैं चेंज कर रहा हूँ इसी को। यहाँ पे मैं बैटरी लगा रहा हूँ और यहाँ पे गैल्वानोमीटर। सो दिस इज द गैल्वानोमीटर एंड दिस इज द बैटरी। तो ये देखा जाए तो वे सेम सर्किट ही है। अब हमने क्या किया, ए और सी के बीच में लगा दिया गैल्वानोमीटर, है ना। अगर मैं चाहूँ, ये लिख लिया ना, हटा रहा हूँ इसको। इट्स लाइक दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज एस, दिस इज आर, राइट। यहाँ पे हो गया ए और सी के बीच में गैल्वानोमीटर था, दिस इज गैल्वानोमीटर। बी और डी के बीच में सेल है। सेम सर्किट आ गया। अगर इसको मैं टिल्ट करूं तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होगा। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, विच इज सेम एज आर बाय एस इक्वल टू पी बाय क्यू। लिख लो इसका आंसर। द ब्रिज विल रिमेन बैलेंस्ड ओनली। द हाँ वही, बिकॉज ये दोनों पॉइंट, अब क्या होगा इस बार, ए और सी वुड बी इक्वी पोटेंशियल। दिस टाइम ए एंड सी वुड बी एट द सेम पोटेंशियल। This time A and C would be at the same potential. तो व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस में क्या होगा, वी जब भी तुम्हें लगता है पांच रेसिस्टर से सीरीज पैरेलल पता नहीं लग पा रहा है, तो विल ट्राई टू लुक फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो बीच वाला हट जाएगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और फिर उसके बाद पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन याद कर लेना, 3 मार्क का आएगा। मैं इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे अब। फाइंड नेट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। Find net resistance between A and B. Look for series parallel, और अगर series parallel नहीं है then look for Wheatstone bridge. जब भी there are 5 resistors connected, more than 4, 5 or 6, look for Wheatstone bridge. कहीं नजर आ रहा है मनन? Wheatstone bridge छुपा हुआ है कहीं पे यहाँ पे? पता नहीं सर। देखो, 10 बाय 10 कितना है, 1/2 इक्वल टू 10 बाय 10 कितना है, उड़ी बाबा सेम है। इसका मतलब इसको थैंक यू वेरी मच कर दो। दिस विल बी नेग्लेक्टेड।
वेरेवर यू हैव 5 रेसिस्टर्स कनेक्टेड, दिमाग में घंटे बज जानी चाहिए कि कहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर घंटी नहीं बजती तो घंटी एक खरीद लो, बजा लो खुद से। तो भाई जरूरी नहीं व्हीटस्टोन का अगर है तो वो ऐसे ही बनेगा हमेशा। ये तो वायर है, इससे क्या फर्क पड़ता है। इस सर्किट को आई कैन शो इट लाइक दिस ऑल्सो, ऐसे कर दिया मैंने। इट्स स्टिल व्हीटस्टोन ब्रिज ओनली। ये और ये सेम ही तो है। तो अब 4 नेग्लेक्ट कर दो, नेक्स्ट बनाओ क्या बन रहा है। हर स्टेज पे सर्किट ड्रॉ करोगे, गलती नहीं होगी। दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 8। इसमें कुछ लग रहा है सीरीज पैरेलल, अब बताओ। सीरीज पैरेलल है कुछ। तो घर में बता रही है तुम्हें धीरे धीरे, दोस्ती निभाती है वो तुम्हारी। देखो अगर सेम करंट जाएगी, अनन्या तुम्हें पता लग रहा है सीरीज कौन सा है। अनन्या यस सर। बताओ। सर, सर नहीं पता। मनन तुम बताओ। 1 and 4 सीरीज है, टू 1 एंड एंड एट 4 सीरीज सीरीज है। में, बिकॉज सेम करंट, सीरीज का मतलब है करंट फ्लो करा के देख लो। ये दोनों सीरीज हो गए, और 2 एंड 8 भी सीरीज है टू बिकॉज एंड एट भी सीरीज में है। सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो 1 एंड 4 इन सीरीज कर लो उसका। 1 एंड 4 इन सीरीज, तो उनका कितना हो जाएगा, 1 + 4 दैट इज 5 ओम। फिर 2 एंड 8, शनाया पता लग गया तुम्हें। आंसर शीट निकाल लो अपनी, मैं देखूंगा अभी, बैग में कहीं रखी होगी। ठीक है। तो 5 एंड 10 देखो, जितने ही मार्क्स हैं पता फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले में अच्छे आने चाहिए। बिकॉज एनालिसिस करेंगे ना हम, क्यों आए, कम आए, ज्यादा क्यों आए। ज्यादा तो अच्छी बात है, और ज्यादा आने चाहिए। तो घबराने की कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम विल डू बेटर। तो अब 1 एंड 4 की जगह क्या लगा दोगे। 5, 2 एंड 8 की जगह 10, राइट। और फिर अब असमी बताना कौन से दो सीरीज में है? क्या बात कर रही हो, घर में चीटिंग करवा रही है ये। और पैरेलल में बताओ कौन से हैं? हाँ, सारे नहीं है भव्या। यस सर। कौन से दो सीरीज में है? कोई नहीं सर, तीनों पैरेलल। बहुत गंदी बात है, चलो ठीक है। सो दैट्स योर आंसर, निकाल लो इनका रिजल्टेंट। व्हेन इन पैरेलल दिस इज व्हाट यू डू। सर 1/2 है ना, 1/2। वो ये नाराज हो जाते तुम एकदम से। सो द आंसर इज, रेसिप्रोकल लेना मत भूल जाना। 1.25 ओम इज द आंसर, ठीक है। तो अगर कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज छुपा भी होगा तुम उसको देख सकते हो। तो व्हीटस्टोन हिडन भी होगा तो पता लग जाता है, 5 रेसिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं व्हीटस्टोन में। 1 2 3 4 5, ठीक है ये। अनन्या क्लियर। कमिंग यस फ्राइडे सर। को तुम्हारा टेस्ट है पोटेंशियल का, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी, कैपेसिटेंस वगैरह सारा याद करके आना। वही पैटर्न होगा, एमसीक्यू, एंड देन 1 मार्क का, 2 मार्क का, 5 मार्क का सारा। 25 26 1 आवर।
Find net resistance between A and B. Find net resistance between A and B. सीरीज पैरेलल देखो कहां पे नजर आ रहा है कुछ? कौन से दो सीरीज में गरिमा? सीरीज। अगर ए और बी के बीच में बैटरी लगा दोगे, सो विल टू रेसिस्टर्स देयर आर एनी टू रेसिस्टर व्हिच हैव द सेम करंट? भव्या, अगर हम बी ए और बी के बीच में बैटरी लगा दें तो क्या ऐसे कोई दो रेसिस्टर है जिसमें सेम करंट जाएगा? बस सीरीज में तो अभी कोई नहीं दिख रहा। बहुत नाइंसाफी है। फिर पैरेलल बताओ। 5 and 15 पैरेलल में 5 and 15 का एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे है, ये वाला, ये और ये। किसमें? सीरीज में नहीं किसमें, है। सीरीज या पैरेलल? पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए? दोनों का एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे होना चाहिए और दूसरा एंड भी दूसरे कॉमन पॉइंट पे होना चाहिए। 15-5 सीरीज नहीं हो सकता बिकॉज जब यहाँ से करंट चलेगी, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, करंट डिवाइड होता है तो सीरीज नहीं हो सकता वो। हाँ, तो बैटरी ए और फिर बी के मतलब बीच में, ए और बी के बीच में बैटरी है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर दो नंबर को तुम ऐड नहीं करो तो मल्टीप्लाई करो, ये थोड़ी होता है। सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ बोलो मनन। एक काम करते हैं, इस वाले सर्किट को ऐसे उठा के इधर फ्लिप कर दो। डू वन थिंग, इस पार्ट को इधर फ्लिप करो, करना। इस ए को उठा के इधर रख दो, कुछ जरूरी फर्क पड़ेगा उससे। ए वाले सर्किट को मैं इधर फ्लिप कर रहा हूं, जरा देखो अब। ये 15 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा और ए कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। इज इट फाइन? इस वाले पार्ट को मैंने फ्लिप करके इधर लिख दिया। अब मैं ये हटा दूं और बी को फ्लिप करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक बार तुम इसका डायग्राम बनाओ, फिर बीच का हटा रहा हूँ मैं। वायर ही तो है, हमने कनेक्शन थोड़ी चेंज किया है। हाँ, इसको मैंने उधर रख दिया और बी को इधर रख दिया। अब कौन सा बीच वाला? ये तो यही है, बीच वाला वही है, ये मैं हटा रहा हूँ अब। अब जरा देखो इसको। अरे तो वो तो पहले व्हीटस्टोन तो पता लगे, अब पता लग रहा है व्हीटस्टोन है। अब पता लगा ना व्हीटस्टोन हो गया। नाउ 5/15 इक्वल टू 3/9। इट इज a balanced Wheatstone bridge. It's a balanced Wheatstone bridge. बस सॉल्व हो गया अब तो इसका मतलब दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। हाँ, यहां लिखोगे दैट इज 5 ohm कैन बी नेग्लेक्ट, उसमें करंट नहीं पास करेगा, विल बी नो करंट थ्रू दैट। तो अब नया सर्किट बना लो। ये 5, ये 15, ये 3, ये 9। बताओ क्या आंसर आ रहा है? 5 and 3 सीरीज।
5 plus 3, 8. 9 plus 15, 24. And then parallel. हाँ, पैरेलल में क्या करते हैं, दो का अगर पैरेलल है, मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, ऐड इन द डिनोमिनेटर। तुम्हें रेसिप्रोकल नहीं लेना पड़ेगा। 6 ओम इज द आंसर। तो छुपा हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज भी हम निकाल सकते हैं इस तरह से। थोड़ा घुमा के हो जाता है, देखो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। हम्म। हम्म। नहीं, सीरीज पैरेलल तो आइडेंटिफाई होगा नहीं, है ना। देन लुक फॉर द 5, हाउ मेनी रेसिस्टर्स आर देयर। 1 2 3 4 5, दैट मीन्स दिस पार्ट, apart from this is a V-stone bridge. Look now, that नहीं, ये कनेक्टेड नहीं था ना, ये भी तुमने कनेक्ट क्यों किया? हाँ, इसके से कंफ्यूजन हो रहा था। दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस आ रहा है इसको। बेसिकली यहाँ पर आके दो जगह पर स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पर आके दो जगह हो रहा है, हम्म। यहाँ पर से दो जगह हो रहा है, यहाँ पर से दूसरी जगह हो रहा हाँ, व्हीटस्टोन में दोनों जगह होता है ना। हाँ, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल बैलेंस में इसका पोटेंशियल सेम हो जाता है, सो देयर इज नो करंट फ्लोज थ्रू दिस। है। किरचॉफ से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। किरचॉफ से कर सकते हो, बट देयर इज नो पॉइंट। किरचॉफ हम पता है कब यूज कर सकते हैं, व्हेन देयर इज अनबैलेंस ब्रिज। मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कराता हूँ। ये जो बैलेंस ब्रिज था ना, हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, हमने याद दिला दिया, अच्छा हुआ। एक क्वेश्चन करो। सपोज दिस इज a system of resistors, 5 resistors। नहीं नहीं, व्हीटस्टोन नाम है साइंटिस्ट का। टेल मी द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टेल मी द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फाइंड नेट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये क्वेश्चन आएगा स्कूल में। 1/2 is not equal to 2/1, it's not balanced bridge। 1/2 is not equal to 2/1, तो मतलब हम इसमें व्हीटस्टोन नहीं लगा सकते, अनबैलेंस्ड है ये। ठीक है भव्या, क्या करोगे इसमें अब? अब मैं तुम्हें इसका सिस्टम बताऊं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यू कनेक्ट ए बैटरी और वोल्टेज V, A C D नेम कर लो, and this circuit says equivalent to a circuit which is say R V, है ना। तो R कितना हो जाएगा? V by I। I need to find resistance of this circuit, say it's R। तो जो V by I की वैल्यू आएगी, that will be the net resistance of the circuit। अब इसे हम किरचॉफ से कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। इतना बना लो एक बार। यह अनबैलेंस ब्रिज है, इसको हमें व्हीटस्टोन से करना पड़ेगा। बैटरी का एक ही बैटरी है, करंट I ले लो, से दिस इज I1, दिस इज I2। तो जाएगा I1 माइनस I2। किरचॉफ्स लॉ लगा दिया, मैंने जंक्शन रूल लगा दिया। अगर शॉर्ट सर्किट से मेरे को शॉर्ट उससे करना है, तो जितना करंट, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, तो बाय सिमेट्री जो करंट इस आर्म में जाएगा वो करंट सेम इसमें जाएगा। जो करंट यहाँ होगा वो करंट यहाँ होगा। दैट इज शॉर्ट वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन, बट बोर्ड में तो मार्क्स शायद ना मिले उससे, उसको प्रॉपर लंबे मेथड से करते हैं। तो I1, I से I1 इधर चला गया, I2 मैंने ऑलरेडी ले लिया है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा अब यहाँ पे? I माइनस I1। यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से I1, I माइनस I1 आ रहा है, तो ये करंट कितना हो जाएगा? दिस करंट विल बी दिस प्लस दिस, है ना। दिस वुड बी I माइनस I1 प्लस I2। So this current will flow this way,
दिस करंट विल फ्लो दिस वे। इन दोनों को ऐड करके बताओ क्या आ रहा है। दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा वापस, आई हो जाएगा। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बिल्कुल पक्का हो चुका है। दैट्स हाउ वी डिवाइड करंट इन अ सर्किट। अब कितने अननोन है यहां पर, तो आई नीड टू टेक 3 लूप्स। लेट्स टेक दिस लूप, लूप ए से सी, सी से डी, डी से वापस ए। इक्वेशन बनाओ सब लोग, फॉर्म इक्वेशन, अप्लाई किरचॉफ रूल। वो बताओ क्या आ रहा है। ए टू सी टू डी टू ए। In the direction of current, minus IR, 1 into I1, C to D, in the direction of current, वापस से 1 into I2, D to A, opposite to current तो प्लस हो जाएगा, 2 into I minus I1 equal to 0. क्या आएगा अल्टीमेटली, वोल्टेज V ले लिया। इज इट योर आंसर, देखो जरा। इक्वेशन 1 यही आ रही सभी की, अनन्या। Yes, sir. नेक्स्ट लूप कौन सा लेना बताओ। ये सी बी डी सी, राइट। बनाओ इक्वेशन, बनाओ इसका। और एक बैटरी वाला लेना, 3 इक्वेशन लोगे, एक में बैटरी भी आनी चाहिए। हाँ, सी टू बी गए तो क्या होगा, माइनस साइन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन बी टू डी ऑपोजिट टू करंट जा रहे हो, प्लस 1 इंटू करंट कितना है, आई माइनस I1 प्लस I2, ये वाला करंट। और फिर डी टू सी जा रहे हो, अगेन ऑपोजिट टू करंट, 1 इंटू I2। सिंप्लीफाई दिस, कितना हो गया, 3I1। देन I2, I2, I2। इज इट करेक्ट। अब लेट्स, आंसर वही आएगा बिकॉज इक्वल टू 0 है ना। वी नीड टू फाइंड V बाय I। हमारा मकसद है V बाय I निकालना, मतलब हमें I1 I2 नहीं चाहिए। वी डोंट वांट I1 I2। तो यू कैन सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 एंड टेल मी I1 I2 in terms of I। सॉल्व 1 and 2 by elimination, by substitution। find I1 and I2 in terms of I। बताओ जल्दी से, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और I1 I2 निकालो I के टर्म में। या तो यहां से I2 निकाल के उसमें रिप्लेस कर दो, सिली मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी।
हाँ, I1 भी फाइंड करो। And I2 is I/5. Okay. यहाँ से I2 या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो I1 कट जाएगा, I2 आ जाएगा। अब बता रहा हूँ मैं, V/I निकालना है। तो कितना आ रहा था, I1 कितना आ रहा है? मनन ये आ रहा है? Yes, sir. We are. एंड I2? I/4. I/5? गरिमा ये आ रहा है? I1 I2 आ गए। अब हमें V/I निकालना, V/I कैसे लाओगे? तो V/I what we do is we use the outer, बड़ा वाला लूप ले लो। अब लूप A C B E F, A, the outer loop which involves battery also. So in the direction of current, 1 into I1. Again the direction of current, -2 into I1 minus I2। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। जब बैटरी को क्रॉस करने के बाद साइन आता है, वो लिया जाता है हमेशा +V = 0। बैटरी को क्रॉस करने के बाद जो पॉजिटिव नेगेटिव आता है, दैट साइन हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो माइनस माइनस यहाँ कुछ भी नहीं था, बैटरी क्रॉस करने के बाद प्लस आ रहा है, +V ले लिया। अब यहाँ पे I1 I2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। दिस इज -3I1 +2I2 इज +V = 0। रिप्लेस I1 I2 रिप्लेस कर दो। V/I बताओ कितना आ रहा है? तो -9I/5, दिस इज +2I/5 +V = 0। So V = 7I/5। तो V/I = 7/5। V/I कितना था, R। तो इस सर्किट का रेसिस्टेंस आ गया 7/5 ओम। तो देखो कितना लंबा हुआ। व्हीटस्टोन बैलेंस नहीं था, उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लग गया। वी हैव टू यूज किरचॉफ्स रूल। V is 7I/5, तो V/I is 7/5। V/I is R। तो अगर बैलेंस नहीं होगा तो किरचॉफ से करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट भी जो है, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि ये अगर I1 है तो आई टेक दिस इज I1, दिस आई टेक I1 माइनस I2 एंड देन आई फाइंड दिस करंट। तो उसमें दो अननोन हो जाते हैं, बट बोर्ड में वो चलेगा नहीं, तो मैं करना पड़ेगा ऐसे ही। अब असाइनमेंट का क्वेश्चन 94 करो। क्वेश्चन 94। पहले क्वेश्चन को पढ़ के इसका डायग्राम बनाओ।
किसी भी सेल का अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, you can show it over here like this, or you can put in series also like this. So you can represent a cell like this, either this way or this way. Internal resistance is resistance inbuilt in the circuit. तो 94 करना है। हाँ 94, two cells of EMF 4.5 and 6, यही है ना? हाँ सर वही। ठीक है, कर लो। Read the question, draw a circuit diagram, and then we have to use Kirchhoff's. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रेसिस्टेंस इन सीरीज, चाहे इधर लगाओ उधर लगाओ तो अब ऐड ही होगा ना। जैसे अमीटर है, कहीं सर्किट में कहीं भी लगा दो सीरीज में। बन गया डायग्राम? टू सेल्स ईएमएफ 4.5 एंड 6 वोल्ट इंटरनल से दिस। तो एक हमारा है 4.5 का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 6 ohm. And the other one is 6 volt and 3 ohm respectively. We have the negative terminal joined by a wire of 18 ohm. तो इनके जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, दिस इज 6 वोल्ट एंड 3 ओम। इनके नेगेटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया बाय अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 18 ohm, and the positive terminals are connected via 12 ohm. और फिर a third resistance of 24 ohm connects these two wires. इन दोनों वायर्स के बीच में एक थर्ड रेजिस्टेंस लगा दिया 24। Draw the circuit diagram, use Kirchhoff's to find the potential difference at the end of the third wire. तो अब क्या हो रहा है कि इन दोनों वायर के बीच में लगा, so this would be 6, this would be 6, this would be 9, this would be 9। 18 को हटा दो, अब 6 को हटा दो, नेमिंग कर लो, A B C D E F। So this is a circuit which involves two cells and so many resistors। E और B के बीच में तुम्हें वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तरीका क्या है? जो सबसे बड़ा सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को ड्रॉ करो I आउट ऑफ 4.5 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, दिस इज द बिगर वन। तो 6 यहां से करंट I चलेगा, करंट अब इस जंक्शन पे आ गया B पे, करंट डिवाइड होगा। अब कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, इसको मैं ले लेता हूं I1। तो इसमें कितना बचेगा फिर? I माइनस I1। इस I माइनस I1 को आगे ले जाओ, I1 चल रहा है। हर रेसिस्टर के पहले और बाद में यू नीड टू शो द करंट। ये I1 है, ये भी I1 है। I1 यहां से आ रहा है, I माइनस I1 आ रहा है, दोनों ऐड हो गए, I हो गया, I हो गया। सर्किट इज कंप्लीट। जंक्शन रूल हमारा आसानी से लग चुका है। यू कैन टेक करंट अदर वे अराउंड ऑल्सो, कुछ और भी कर सकते हैं। यहाँ पे I1, यहाँ पे I माइनस I1, बट मैंने I1 यहाँ इसलिए लिया बिकॉज इसमें कई सारे रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी ना। इस वाले पार्ट में यू हैव 3 रेसिस्टर्स, सो द कैलकुलेशन वुड बी लेस। तुम करंट को अपने हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हो, फाइनल आंसर सेम आएगा सबका। देयर आर टू अननोन्स I एंड I1, टेक एनी टू लूप्स एंड सॉल्व करो, अपने आप से कर लो, अपने मन से कोई 2 लूप लेके सॉल्व कर लो, अदर मैं लूप लिख देता हूं, फिर हम चेक कर लेंगे बाद में। A F E B F ले लो एक तो,
दूसरा लूप ले लो, बी ई डी सी बी। सिर्फ 2 लूप से काम चल जाएगा। हाँ बस, अदरवाइज बड़ा भी ले सकते हो, दो, ओनली 2 आर नीडेड। फॉर्म इक्वेशंस। हम्म। हम्म। बैटरी में थोड़ा पास रखा करो उसको ना। सेम आई आई आएगा ना, यहाँ पे आई होगा। हाँ तो I1, दिस इज आई, दिस इज आई, दिस इज I1। नाउ दिस इज आई, ठीक है। दिस इज दिस इज आई। आफ्टर दैट दिस I1 ना, एरो लगाओ, दिस I-I1, I-I1 प्लस I1 बिकम्स I अगेन, ठीक है। फर्स्ट की क्या इक्वेशन आ रही है? भव्या कर लिया पहला वाला? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, इसमें तो हो जाना चाहिए। गरिमा हो गया पहला? दिस इज A to F। बैटरी क्रॉस करोगे तो नेगेटिव टर्मिनल आएगा -4.5। फिर 6 I1 नेगेटिव, फिर 9 I1, फिर नेगेटिव, फिर ऑपोजिट करंट जा रहे हो, 24 प्लस हो जाएगा I-I1, फिर B to A, है ना, -6 I1 इक्वल्स टू 0, ये आ रहा है।
चेक करो, I1 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 I1, कितने I1 हो गए? 15 and 30, 45 प्लस I तो एक ही है, इज इक्वल टू 4.5। जरा देखो यही है? हम्म, ये नहीं आ रहा? अनन्या, फर्स्ट इक्वेशन। तो मेरा 4.5 प्लस 59 माइनस 30 आई आ रहा है 15 इज I, इक्वल टू I1 59। 15 कैसे आ रहा है? -24 -6 -30 और फिर -15 -45 आ रहा है। चेक करो साइन का। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस आई लेना है, ऑपोजिट ऑफ करंट प्लस लेना है। मनन, तुम्हारा क्या आ रहा है? तो मेरा तो यही है। हम्म, कसमी कर लिया? क्या किया? यहाँ से गया ना, -6I1 -4.5, ये तो 6 है। ये वाला 6 कहाँ गया? अच्छा, वापस आगे कर दिया तुमने उसको। हाँ तो ठीक, ये तो आ रहा है, ये तो लिखा है मैंने, इसको मैंने इधर लिख दिया। तुम्हारा ये आ रहा है किसमें? 78, 78, 6 टाइम्स ये आ रहा है। BEDC भी करो अब। मनन, क्या हुआ? यही आ रहा है ना? भव्या, सेकंड वाला कर लिया? B2E, B2E जाओगे तो -24I -I1, E2D जाओगे तो -9I। करंट का ध्यान रखना, ये आई करंट है, टच मत कर लेना, करंट लग जाएगा। 3I, एंड देन क्रॉस द बैटरी +6, एंड देन -6I। चेक दिस आउट, ये सही है सभी का, देखो। हम्म, अब इसमें I1 एक ही जगह आ रहा है। हाँ, ठीक है, आई वाला क्लब कर लेते हैं पहले। हाँ, वोल्टेज पोफ, सो दिस इज 24, 6I 30, 39, 42, राइट? 42I, मैंने उधर 6 में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। I1 की एक ही टर्म आ रही है ना, -6, ये 6 से डिवाइड हो रहा है वैसे। 7I, नहीं, हाँ, मैंने साइन चेंज कर दिया ना, आई हैव चेंज द साइन ऑल्सो। अब इन दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लो। ये तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो, यहां से आई निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। फाइंड I एंड I1। हाँ, ये नहीं आ रही इक्वेशन? नहीं, गलत क्यों? पीछे हो सकता है आंसर गलत है इस क्वेश्चन का, असाइनमेंट में एंड में आंसर गलत दे रखा है इसका। नहीं, वो गलत है। आई रिप्लेस करना है, क्या रिप्लेस करना? आई रिप्लेस कर दूं? I इज इक्वल टू 1 + 4I1
बाय 7, इसको रिप्लेस करो इसमें। तो -45I1 प्लस 24I, आई इज 1 प्लस 4I1 बाय 7 इक्वल टू 4.5। 7 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा। ये कितना हो गया? 219। I1 आ गया 19.5 बाय 219। आई हैव रिप्लेस्ड आई। आंसर मेरे ख्याल से पीछे गलत है आंसर। एंड I1 क्या? हाँ तो I1 तो यही आ रहा है ना। आई निकालो। हाँ 45 × 7। हाँ ये नहीं है। 45 × 7 क्या ना। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ ये वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। किसको? अच्छा 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 ओके। 1 मिनट 1 मिनट। ये नहीं किया ना 7 से। तो कितना आएगा फिर अब? 24 माइनस 28 प्लस 31.5। ये 219 था ना। So what is I1? माइनस आ रहा है 219। दिस आई सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, ये तो I1 आ गया। दिस इज 4I1, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। दैट इज 4 × 7.5 कितना होता है? 30। सो आई विल बी 219 माइनस 30 बाय 7 × 219। So this is 189 divided by 7 × 219। दिस 7 से कट रहा है ना ये। अच्छा ठीक है, आई इतना आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वोल्टेज इन द 24 ओम, है ना। वोल्टेज अक्रॉस 24 ओम कितना होगा? 24 × I - I1। तो 24, अगर तुम्हारा I1 नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, ठीक है। 27/219 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7.5/219। नेगेटिव साइन का मतलब है करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। हाँ तो I1 is negative, so ultimately become positive. It basically shows that whatever direction we have taken, actually it's opposite. I1 को I'll put negative sign, तो ultimately add हो जाएगा वो। तो क्या आ रहा है V? ठीक है 34.5/219। सो V निकाल लो अब कितना आ रहा है। 24 × 30.5/219। भव्य यही था। ठीक है
करंट इन द 24 ओम वाज I minus I1. I1 था नेगेटिव, दिस वो पॉजिटिव हो गया. इसका आंसर शायद पीछे गलत दे रखा है मैंने. हाँ, वो गलत है. इफ यू कैन चेक इन गूगल, देखो क्या आंसर है, बिकॉज ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन कई बार. हो गया. कुछ वैल्यू डिफरेंट है क्या इंटरनल रेजिस्टेंस की? बिकॉज इफ इवन इफ वन वैल्यू इज डिफरेंट, वो पूरा आंसर डिफरेंट हो जाएगा. मैंने छोड़ो, हमने तो सही किया है वैसे. 3 पॉइंट ना, हाँ वही तो आ रहा है 3.78. ठीक है. तो दिस इज अगेन यूजिंग किरचॉफ्स रूल. तो अब इसके ना किरचॉफ्स रूल के क्वेश्चंस कर लेना तुम असाइनमेंट के सारे. so many questions are there based on Kirchhoff's rule, right from 88 to 97 तक सारे Kirchhoff's पे बेस्ड हैं. हाँ. अनन्या आगे बढ़े, हो गया, लिख लिया. Yes, sir. EMF and terminal potential. You all know that a cell is a device to have potential difference. सेल के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट होता है, या तो सॉलिड फॉर्म में होता है, या सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. एंड देयर टू इलेक्ट्रोड्स, one is at higher potential, another lower potential, and this is nothing but a cell. Electromotive force actually force नहीं होता है, it is a voltage. Since ions find difficulty to move inside the electrolyte, negative ions will move towards positive electrode, positive ions will move towards negative electrode, and the hindrance in the motion will be nothing but internal resistance of the cell. So what is internal resistance? When ions are moving inside the cell, the hindrance is basically, लिख चाहो तो लिख लो, internal resistance of a cell. Internal resistance of a cell is hindrance to the motion of ions inside the cell. It is represented by small r. Sir, कैसे बोलूं? Hindrance to the motion of ions inside the cell, inside a cell, is called internal resistance. It is represented by small r. तो किसी भी सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइक दिस. दिस इज द ईएमएफ, वोल्टेज ऑफ द सेल. तो अगर इस सेल को मैं कनेक्ट करूं एक वोल्ट मीटर से, तो क्या होगा? द मोमेंट यू कनेक्ट ए वोल्ट मीटर, सर्किट इज क्लोज्ड, मतलब करंट विल फ्लो इन द सर्किट. दिस इज द सोर्स ऑफ वोल्टेज, दिस इज द, यहाँ पे उसका रीडिंग आ रहा है. बट हो क्या रहा है? रेसिस्टेंस इज लाइक फ्रिक्शन. अगर मैं फ्रिक्शन को ओवरकम करना है तो मैं एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है. तो सिमिलरली इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी. तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है. तो इंटरनल रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए सम पोटेंशियल एनर्जी विल बी यूज्ड, एंड दैट्स
I into R, पोटेंशियल ड्रॉप. तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना आएगा? दिस सोर्स वोल्टेज माइनस आई आर. द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी E minus IR. E is the EMF of the cell. कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो चुका है, मतलब कुछ वोल्टेज यूज हो गया है अगेंस्ट द इंटरेंस और द इंटरनल रेसिस्टेंस. तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन जाती है. जब भी कोई सेल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब वी ड्रॉ करंट फ्रॉम द सेल. चार्जिंग ऑफ ए सेल में रिवर्स होता है. तो दिस इज ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ ए सेल. चार्ज मतलब करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. तो अब इसमें क्या होगा? रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ई से थोड़ी छोटी आएगी. The EV would be always less than E because of this fact. या तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो तो E और V दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो अगर मैं सर्किट को ओपन कर दूं, इफ आई ओपन द सर्किट जस्ट द की, इफ सर्किट इज ओपन, दैट इज I इज जीरो, तो V क्या होगा? दैट्स हाउ यू डिफाइन E. EMF of a cell equals to potential difference between two terminals of a cell when circuit is open. हाँ लिखो. अब हम डिफाइन कर रहे हैं EMF of a cell. EMF of a cell equals to EMF of a cell equals to potential difference between two terminals of a cell या cross terminals of a cell when circuit is open. EMF is potential difference between two terminals of a cell when circuit is open. When circuit is open, open circuit में I जीरो हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज EMF. लेकिन जब करंट जीरो नहीं होगा, क्लोज सर्किट होगा, क्लोज सर्किट में करंट ड्रॉ हो रहा है. सो व्हाट विल बी V? V इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल. लिखो, V इज टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ए सेल. टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ए सेल, सृष्टि, हाँ क्या लिया था? टर्मिनल पोटेंशियल. लिखो, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ए सेल, terminal potential of a cell is potential difference between two terminals of a cell, between two terminals of a cell when circuit is closed. आगे लिखो, while charging, while discharging, discharging के आगे ब्रैकेट में लिखो, current is drawn from the cell. While discharging, ब्रैकेट में, when current is drawn from the cell, terminal potential is always less than EMF. Terminal potential is always less than EMF. ये सारे कंसेप्चुअल आएंगे 1 मार्क के. ये वो एजर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आते हैं ये. ठीक है. तो जब भी कोई सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा, उसका EMF टर्मिनल पोटेंशियल से ज्यादा होगा. टर्मिनल पोटेंशियल होगा E माइनस आई आर और E होगा EMF. लेकिन सर आगे लिखो. हाँ बोलो. सर टर्मिनल पोटेंशियल वाली डेफिनेशन ऊपर रखो. टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ए सेल is potential difference between two terminals of a cell when circuit is closed. Terminal potential is potential difference between two terminals of a cell when circuit is closed. Bracket में current is drawn from the circuit. आगे लिखो, while charging
equation would be V is equal to E plus IR. जब किसी सेल को चार्ज करोगे तो V will be E plus IR. मतलब current is supplied to the cell. Cell is a single cell, battery is cluster of cells, 2 or 3 or more cells. तो ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा होता है. जैसे तुम अपनी बैटरी चार्ज करते हो मोबाइल वगैरह की, तो ये इक्वेशन बनती है, उसमें V विल बी मोर देन E. तो वाइल चार्जिंग मतलब करंट उल्टा हो जाएगा ना. चार्जिंग पता है कैसे करते हैं, चार्जिंग में अगर किसी सेल को चार्ज करना है तो क्या करोगे, एक बहुत बड़ी बैटरी से, जैसे कि हम यूज करते हैं ना, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है फिर. दिस इज द बैटरी जिससे हम चार्ज कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इक्वेशन बिकम दैट. तो चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा होता है. ठीक है. सो विद दिस वी एंड द स्टोरी. अगली क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा. विल स्टार्ट विद मैग्नेटिज्म. और फ्राइडे को यू हैव टेस्ट. साउथ सेंटर पे टेस्ट सैटरडे को होगा या संडे को होगा. ठीक है. एंडिंग द क्लास. Thank you, sir.